Hello students, welcome to chapter 5 towards green energy. In this part we are going to study about use of various energy resources, generation of electrical energy and various processes or traditional methods of generation of electricity. We all know that in modern civilization energy has become a prime need along with the food, clothes and shelter. We need this energy in different forms for diverse type of work. मुझे नहीं लगता कि हम कोई भी काम बिना एनर्जी के कर ही नहीं सकते हैं. द एनर्जी दैट वी मे नीड इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, साउंड, लाइट or heat energy. Now how do we get these different forms of energy? We all know that energy can be converted from one form to another form. Different sources of energies are used to the different forms of energy necessary for us. In previous standard, we have learned about the energy, sources of energy, various concepts related to them. Now here we will learn about various sources that are now used for the generation of electrical energy. किस तरह से हम अलग अलग sources से electricity तैयार कर सकते हैं, what are the different methods, then scientific principles that are used, the advantages and disadvantages of all the traditional methods. Now let us study how the generation of electricity takes place. Now most of the electric power plants are based on the principle of electromagnetic induction given by Michael Faraday. According to this principle, whenever the magnetic field around a conductor changes, a potential difference is generated across the conductor. Now the field around the conductor can be changed in two ways. यहाँ आपको दिखाया है. If the conductor is stationary and magnet is rotating, the field around the conductor changes, or if a magnet is stationary but the conductor is moving, then also the field around the conductor will change. Thus, in both these cases, a potential difference across the conductor is created and the electrical power generating machine based on this principle is called electric generator. इस तरह से बड़े बड़े इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो है वो बड़े बड़े कमर्शियल पावर प्लांट्स में सेट किए जाते हैं और टरबाइन इज यूज टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर. यहाँ पे कंटिन्यूस हमें मैग्नेट का मूवमेंट होना है तो उसके लिए टरबाइंस यूज किए जाते हैं. अ टरबाइन हैज अ blades. When the flow of the liquid or gas is directed on the blades of the turbine, it rotates. Now, because of the kinetic energy of the flow, this turbine is connected to the electric generator. Thus, a magnet in the electric generator starts rotating and electrical energy is प्रोड्यूस्ड. इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड किया जाता है. अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है ये जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हमको उसके लिए जनरेटर होना है. टू रोटेट द जनरेटर वी नीड द टरबाइन एंड टू ड्राइव द टरबाइन वी नीड एन एनर्जी सोर्स. नाउ बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज यूज टू रोटेट द टरबाइन, there are different types of power generating stations. Now the design of the turbine used is different for different power station. वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा सोर्स हमने यूज किया है टरबाइन को ऑपरेट करने का. तो आइए देखते हैं सबसे पहला टाइप. तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करते रहता है और उसको हम टरबाइन से कनेक्टेड करते हैं ताकि उसमें से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती रहे. नाउ द फर्स्ट टाइप इज द थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. नाउ इन दिस टाइप अ टरबाइन इज रोटेटेड. यहाँ पे आप देखोगे अ टरबाइन इज रोटेटेड यूजिंग द स्टीम. अब ये स्टीम कहाँ से आता है? तो वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर
Using the thermal energy released during the burning of the coal, steam of a very high temperature and pressure is generated. The energy in the steam it drives the turbine और इस तरह से ये जो टर्बाइन होता है ये रोटेट होने लगता है. Thus a generator is connected to the turbine and electricity is प्रोड्यूस. इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार हो जाती है. द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक in the water and the water is recirculated to the boiler. अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से फ्लो चार्ट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एनर्जी सोर्स हमने फ्यूल जो है वो कोल लिया है, उसको हम बॉईल वाटर को बॉईल करने स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, जो अल्टीमेटली टरबाइन को ऑपरेट करता है, जनरेटर्स काम करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है. सो यहाँ पे ये सिस्टम दिखाया है जिससे जो स्टीम तैयार हो गई है कूलिंग टावर्स के थ्रू पानी में वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है. नाउ since thermal energy is used here to generate electrical energy, such power plants are called thermal power plants. So thermal power plants में क्या होता है, chemical energy in the coal is converted into electrical energy through the various steps. तो आप देखोगे यहाँ chemical energy जो है इसको हम thermal energy में convert कर रहे हैं, जो ultimately kinetic energy steam को convert करती है, जो kinetic energy फिर टरबाइन को ऑपरेट करती है और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है. सो हियर हाउ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नाउ इफ यू सी द थर्मल पावर प्लांट्स यू विल ऑब्जर्व द टू टाइप्स ऑफ टावर्स. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे एनर्जी कन्वर्शंस यहाँ पे हो रहे हैं. अगर हम डायग्राम्स देखते हैं तो वहाँ पे हमें किस तरह से वो कूलिंग टावर्स होते हैं वो हमें दिखता है. अब यहाँ पे the steam which is converted back, this is done in using the cooling tower. अब यहाँ पे the heat absorbed, यहाँ पे जो heat absorbed होती है थर्मल पावर जनरेशन जो है ये मेजर इलेक्ट्रिकल जनरेशन का काम करती है आज के भी दौर पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. आप तो देखोगे अभी कोयले के भी डिपॉजिट्स लिमिटेड हो गए हैं, दे आर नियर टू द एक्सटिंक्ट. लेकिन अब हमें और भी कई ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स इसके देखने हैं. पहला तो है एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द कोल. So burning of the coal it results in the emission of gases like carbon dioxide, sulfur oxide and nitrogen oxides which are harmful to our health. Along with the emission of the gases due to burning of the coal, soot particles are also released. धीरे बारीक बारीक जो soot particle होते हैं, काला धुआं, वो भी रिलीज होता है और ये हमें हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसके अलावा जस्ट मैंने बताया द रिजर्व ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन दिस मेथड दैट इज कोल, वो बहुत लिमिटेड है. तो देयरफॉर इन फ्यूचर देयर विल बी अ लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल. मेरे ख्याल से अब ये टाइम आ गया है कि कोल के डिपॉजिट्स बहुत ही ज़्यादा कम है. सो ये हो गया फर्स्ट मेथड जहां हम कोल को यूज़ कर रहे हैं. Now let us move ahead to the second type, that is the nuclear energy. How we are using the nuclear energy to get the electrical energy. यहाँ मैंने सबसे पहले आपको nuclear fission दिखाया है. We all know that the elements having the atomic number more than 82 आर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो कंटिन्यूसली एमिशन करते रहते हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सो वी हैव टेकन यूरेनियम 235 एंड इट एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 236. देखो आपने देखा यहाँ पे यूरेनियम 236 जो होता है ये बहुत एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन अलोंग द प्रोसेस ऑफ फिजन, सो रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन्स. इसके साथ यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं एंड 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो फॉर्म. 3 न्यूट्रॉन्स जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉज द फिजन ऑफ अदर यूरेनियम 235. यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरह से ये बाकी के न्यूट्रॉन्स इनको अफेक्ट करते हैं. तो इस तरह से मोर एनर्जी इज रिलीज. अब ये जो न्यूट्रॉन रिलीज करता है इस तरह से
ये फिशन करेगा बाकी के न्यूक्लियस का, एंड दिस प्रोसेस ऑफ यूरेनियम 235 कंटिन्यूज एंड इज कॉल्ड एज द चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि क्यों हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज कर रहे हैं। नाउ इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स होते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। नाउ इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये जो तैयार हो रही है, स्टीम टरबाइन इज यूज टू रोटेट द जनरेटर। यहाँ ये जनरेटर जो है ये इस तरह से रोटेट हो रहा है। एनर्जी रिलीज बाय द फ्यूजन ऑफ न्यू एटम्स लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनको भी यूज किया जाता है अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और फिर द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टरबाइन। देखो आप यहाँ टरबाइन रोटेट हो रहा है, विच इन टर्न ड्राइव द जनरेटर एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से यहाँ पे भी कन्वर्शंस हो रहे हैं। तो यहाँ हम इसका फ्यूल करके यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जो कंट्रोल रॉड्स रहते हैं ये इन चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कूल वाटर को हमेशा हमें प्रोसेस में यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टीम। Kinetic energy of the steam is converted into kinetic energy of the turbine। यहाँ पे आपको दिख रहा है। And finally the kinetic energy of turbine is converted into electrical energy। इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके फायदे तो है कि ये कोल के जैसे हमको फॉसिल फ्यूल नहीं यूज करना पड़ता है, बट still the problems like air pollution do not arise, and also if sufficient nuclear fuel is available, this can be a good source of electrical energy. However, there are some problems associated with this power plant also। पहला तो है कि प्रोडक्ट आफ्टर एमिशन आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव। जो बेरियम और क्रिप्टॉन तैयार होते हैं वो भी रेडियो एक्टिव है और हार्मफुल रेडिएशन करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इन्हें हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, एंड इट हियर टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। उसके बाद जो है द एक्सीडेंट इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल, डेथ कॉजिंग होता है, बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। तो देखिए इसके प्लस पॉइंट तो है बट डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा इसके सीरियस है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द traditional method, that is power generation plant based on energy of natural gas। अब देखिए इन दिस प्लांट क्या कर रहे हैं हम, अ टर्बाइन इज रन बाय द गैस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होती है उसे कंप्रेस्ड करके कंबशन चेंबर में चला के टरबाइन को ऑपरेट किया जाता है, जो आगे जाके जनरेटर से कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। अब there are three main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced, combustion chamber using the compressor, then combustion chamber the natural gas burns in the presence of air and very high temperature प्रेशर पे ये जनरेट करती है टरबाइन, और टरबाइन जो है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट इज हायर than that of the power generation based on coal। तो इसका efficiency तो बहुत ज़्यादा है। Moreover, since the natural gas does not contain sulfur, burning of natural gas results in less pollution। तो इसमें जो pollution हो रहा है वो as compared to coal and nuclear काफ़ी हद तक कम होता है। Now here these are all the traditional methods which are used फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन हर एक के इसमें हमें एडवांटेज भी दिख रहे हैं और डिसएडवांटेज भी दिख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए ऑल्टरनेटिव वेज क्या है। तो वो ऑल्टरनेटिव वेव्स हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, हाउ टू गेट द ग्रीन एनर्जी। सो लेट अस मूव अहेड। यहाँ तक हमने सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़ा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड वी विल
Meet in next part for the next green energy concept.